Okay. So Osteichthyans in many early branching lineages have lungs. ये बता चुके हैं. तो lung is a early character in Osteichthyans, and swim bladder is a derived character or a derived structure or a derived character, you can say. Okay. Earlier, it was proposed by Charles Darwin that swim bladder is early character, okay, of Osteichthyes, and lung is a derived character. But opposite is true, because we have found that lung appeared before the swim bladder. In nearly all fishes, skin is covered by flattened bony scales that differ in structure from tooth-like scales of the shark. ठीक है. एक और डिफरेंस है यहां पर. क्या है? बोनी फिशेज में the scales are flat and bony, and they differ in structure also. But in shark, scales are tooth-like and they are not bony. Okay. And they are not flat also, because they are tooth-like. Glands in the skin secrete a slimy mucus over the skin. In Osteichthyans, all Osteichthyans, aquatic Osteichthyans, glands in the skin secrete a slimy mucus over the skin, and it is an adaptation that reduces the drag during the swimming to reduce the friction with the water. Okay, because that slimy mucus is water repellent. Like the ancient aquatic gnathostomes mentioned earlier, fishes have a lateral line system, which is evident as a row of tiny pits in the skin on the either side of the body. Okay, lateral line system हम बता चुके हैं क्या होता है. पहले कहाँ देखे थे lateral line system? lateral line system कहाँ देखे थे सबसे पहले? गनेथोस्टोम्स में. ग्रैथोस्टोम्स तो ये भी है, फिश भी है, सब फिश. ओस्टिथिस भी ग्रैथोस्टोम्स है. ग्रैथोस्टोम तो सब है. तुम भी ग्रैथोस्टोम्स. पहले कौन सा ग्रैथोस्टोम था जहां लेटरल लाइन सिस्टम देखे? कॉन्ड्रिस्थिस में देखे थे ना लेटरल लाइन सिस्टम. कॉन्ड्रिस्थिस दोनों कार्टिलेजिनस फिशेस. ओके. तो लेटरल लाइन सिस्टम का क्या काम था? वाटर में वाइब्रेशन. हाँ, वाटर में जो वाइब्रेशन. वाटर वाइब्रेशन. ओके. वाटर में जो पानी हिलोड़ा मारता है उसको वो पकड़ लेता है, मूवमेंट को, वर्टिकल. द डिटेल्स ऑफ फिश रिप्रोडक्शन, तो ये बाद में हम लोग एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे. द डिटेल्स ऑफ फिश रिप्रोडक्शन में वेरी एक्सटेंसिवली. ठीक है. मोस्ट स्पीसीज आर ओविपेरस, reproducing by external fertilization. After the female sets large number of small eggs, however, internal fertilization and birthing characterize other species. कहने का मतलब हुआ, in Osteichthyes also we see animals are oviparous and viviparous both. Cartilaginous fish में भी हम लोग देखे थे, they are oviparous. Some species are oviparous and some species are viviparous. ओके. ओविपेरस विविपेरस में क्या डिफरेंस है? ओके. क्या डिफरेंस है? ओविपेरस आर एग लेइंग एंड द एग्स आर हैच्ड आउटसाइड द बॉडी. विविपेरस eggs are hatched inside the body and the development also occurs inside the body of the young ones. In oviparous, eggs are laid outside the body and they hatch outside the body also. Okay. And in external fertilization happens.
Okay, but not all the this thing oviparous animals, not all the oviparous animals. Some oviparous animals, there are internal fertilization also occur in some of the oviparous animals. Okay, like hen and etc. That we will study later. Okay, I will not go into the detail. External fertilization के बाद ओविपेरस एनिमल्स, लेकिन ये हमेशा होगा कि जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो ओविपेरस ही होगा, ये निश्चित है। ठीक है, लेकिन जितना एनिमल्स है, जो जितने ओविपेरस एनिमल्स है, सारे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा ये नहीं है, लेकिन जितना का एक्सटर्नल होगा वो ओविपेरस है, ये सब जान लो आप। एंड सर जो ओवोविविपेरस होता है ओवोविविपेरस एंड विविपेरस, देखो इसमें इसमें डिफरेंस है, कंसेप्चुअल डिफरेंस है। ओवोविपेरस होता है कि आपका डेवलपमेंट ऑफ द यंग एंड द हैचिंग ऑफ द एग टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। यस सर, Birth takes place in the uterus and then the animal comes out of the body, oviviparous. And in the viviparous, eggs are hatched in the uterus and the development also occurs in the uterus. And after the birth, baby comes out. यस सर, ओविविपेरस हो गया, ओविविपेरस को रिप्लेस कर दो ओविडक्ट से। जो काम यूटरस में हो रहा था विविपेरस में, वही काम ओविडक्ट में हो रहा है। ओके। अच्छा कुंदन, ओके ऑफ कर लो। एनीवे, तो अब हम लोग देख रहे हैं, आगे चलते हैं। तो ये अभी तक क्या था आपका, ऑस्टिस्थिस का एक लीनिएज था, मतलब ऑस्टिस्थिस का ओवरऑल हम बता रहे थे आपको कि कैसे करता है। अब ऑस्टिस्थिस का जो फर्स्ट लीनिएज है और द फर्स्ट ब्रांच इज द रे फिन फिशेस। ओके, द रे फिन फिशेस आर द एक्टिनोप्टेरिगी। ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड रे फिन फिश? Because endoskeleton is like a ray, so the fin are also like ray, because the fin is inside the fin, there is endoskeleton which is bony and the associated tissue and tissues. और tissues में क्या है, connective tissue, muscle tissue. Nearly all the aquatic ostisthians familiar to us are among the 27,000 species of ray finned fishes actinopterygii figure। अब देखिए रे फिन फिशेस का कुछ एग्जाम्पल, वैरायटी का रे फिन फिशेस है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है रे फिन फिशेस, स्टिल लिविंग आज भी। बोनी फिशेस जो आप ज्यादातर हम जो है खाते हैं जो, ठीक है, 27,000 species। देखो ये दिस इज द येलो फिन ट्यूना फिश। ठीक है, ट्यूना फिश, इसका बहुत ज्यादा कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ओशियन में। ठीक है, एंड दिस इज क्या है आपका, लायन फिश, ब्राइटली कलर्ड रेड लायन फिश, ये भी है एक्टिनोप्टेरिगी रे फिन फिश। क्या खासियत है, इट कैन इंजेक्ट वेनम थ्रू इट्स स्पाइन्स। देयर विद various spines, multiple spines present on the body, and it can inject the venom, causing severe and painful reaction in humans. तो ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। Another interesting animal is seahorse, and its body is highly modified. And ये क्या है इसमें इंटरेस्टिंग कि young ones are attached to the body of the male,
मेल कैरीज द यंग ड्यूरिंग देयर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। यहाँ पर मेल में के ऊपर ही एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो रहा है यंग वंस का। यू कैन सी दिस white white white, several young ones are attached to the male body. Another one is fine spotted moray eel is a predator that ambushes prey from crevices in its coral reef habitat. coral reef के अंदर जो दरारें होती है उसमें छुपा रहता है ये, और वहीं से ये शिकार करता है छुप के। सो ये भी एक एक्टिनोप्टेरिगी है। तो 27,000 स्पीसीज है। named for the bony rays that support their fins. The ray fin fishes originated during the Silurian period. Silurian period में आया ये। The group has diversified greatly since that time, as suggested by modifications in body form and fin structure that affect maneuvering, defense, and other functions. मतलब कि साइलुरियन पीरियड में आने के बाद ये ग्रुप जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई हुआ अभी तक, और जैसा कि ये मॉडिफिकेशंस आप देख सकते हैं इन सारे वेरिएशंस में, कितना अलग अलग तरह का ये सब एक्टिनोप्टेरिगी है। सो दीज आर द एडेप्टेशंस व्हिच अफेक्ट देयर मैन्यूवरिंग। डिफेंस के लिए कौन सा था? ये वाला डिफेंस के लिए मॉडिफाई कर लिया पाइक सर। हाँ इस ये देखो मैन्यूवरिंग के लिए कितना सारा फिन है इसमें, बॉडी एकदम फ्लैट है ताकि ये फटाफट स्विम कर सके, ठीक है। एंड अदर फंक्शंस मेल जो है दे आर ऑन द बॉडी ऑफ मेल एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस आर अकरिंग। और ये भी देख लो कि फिन पूरा गायब हो गया इस पर, ईल लाइक बॉडी हो गया। कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ईल है, लेकिन बट दिस इज एक्टिनोप्टेरिगी, दिस इज ए फिश, दिस इज नॉट ए ईल, दिस इज नॉट एन ईल। ओके, सो रे फिन फिशेस सर्व ए मेजर फंक्शन ऑफ द प्रोटीन फॉर ह्यूमंस। फूड सोर्स के लिए यूज किया जाता है इसको। हु हैव हार्वेस्टेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। However, industrial scale fishing operations appear to have driven some of the world's biggest fisheries to collapse. For example, after decades of abundant harvests in 1990s, the catch of cod fish का नाम सुने होंगे, cod fish, ये दवाई में यूज होता है, मेडिसिन में। cod fish oil, लीवर बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, इसका कैप्सूल आता है, इसको खाने से लीवर मजबूत हो जाता है। इसके लिए इसका बहुत शिकार हुआ, कॉड फिश लिवर ऑयल के लिए। द स्पीसीज इज गैडस मोरहुआ, ठीक है। इन नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक कॉड फिश का इतना ज्यादा शिकार हुआ कि देयर पॉपुलेशन प्लम टू 5% हिस्टोरिक ऑफ इट्स हिस्टोरिक मैक्सिमम। उसके मैक्सिमम का 5% ही बच गया, ठीक है। बाद में उस पर हॉल्ट लगाया गया, कॉड फिश को शिकार बंद करो, क्योंकि ह्यूमन ने इतना एक्सप्लॉइट किया। बहुत काफी अच्छा है, डॉक्टर लिखता है, जिसका फैटी लिवर हो जाता है, हार्ट का डिजीज जिसको होता है, कार्डियोवैस्कुलर ब्लॉकेज वगैरह होता है, उसके लिए काफी ये होता है। Okay, despite ongoing restrictions on their fishery, cod populations have yet to recover to sustainable levels. अभी तक भी sustainable level तक नहीं आया है। Ray finned fishes also face other pressures from humans, such as diversion of rivers by the dams. अब क्या हो रहा है? सरकार विकास परियोजनाओं के नाम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाते जा रही है, उससे क्या हो रहा है? पर्यावरण का नुकसान होता है। आपको कैसे समझ में आएगा पर्यावरण का नुकसान कहाँ हो रहा है? जिस भी वैली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनेगा वहां का पेड़ गया, वो इकोसिस्टम टोटली कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू डाइवर्सिफाई द रूट ऑफ द रिवर, तो उसमें फिश का जो माइग्रेटरी पाथवे है, उसका स्पॉनिंग लोकेलिटी है, जहां जहां आइडेंटिफाई करके रखा है, यहाँ मंडा देंगे, यहाँ देंगे, ये सब बहुत सा बिहेवियर होता है फिश का।
all these things are matlab disturbed. Changing water flow patterns can hamper the fish's ability to obtain food and interferes with migratory pathways and spawning grounds. Spawning ground मतलब जहां वो external fertilization, spawning किसको बोलते हैं, जब फीमेल जो है, when female is ready for the ओव्यूलेशन, नहीं फर्स्ट समझो ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब अंडा देने की प्रक्रिया, जब अंडा निकलता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अंडा तो निकला ओवरी से, तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी से वो ओविडक्ट के थ्रू आ गया क्लोका में, और क्लोका से जब बाहर निकला एग तो उसको बोलते हैं स्पॉनिंग, एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर स्पाउंड एट वन टाइम। ओके, so what happens at the same time male also comes because external fertilization है, तो वाटर है बहुत ज्यादा, तो जल्दी तो वाटर में क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसे ही स्पॉनिंग हुआ तुरंत फर्टिलाइजेशन होना है, घंटा तक वो वेट नहीं करेगा। ओके, अदरवाइज दैट थिंग विल डाई, एंड द वाटर इज द मीडियम, वाटर सराउंडिंग में बहुत ज्यादा है तो वो पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, सो it is required for the male and female to come at the same time at the same location, और at the same time क्या होता है, वो spawn करती है फीमेल, and the male भी जो है अपना स्पर्म इजैकुलेट करता है और उसी समय तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पॉनिंग। सो द लोब फिन्स, कौन ये येलो येलो लाइन कर दिया भैया, पूछना है किसी को कुछ? अब इसको कैसे हम इरेज करें, कुछ पूछना है? किसने येलो येलो कर दिया इसको? इरेजर कहाँ है? एनो, अच्छा यहाँ है। ओके चलो, अब आते हैं हम लोग एक्टिनोप्टेरिगी से अब सार्कोप्टेरिगी में। बोनीफिसेस का दूसरा जो है लिनिएज या ब्रांच कह लो, दूसरा ब्रांच जो है क्लासिफिकेशन के, दूसरा ब्रांच दैट इज जिसमें फिन जो है फ्लेसी है, यानी उसका एंडोस्केलेटन का जो एंड है वो राउंड है और वो फ्लेसी है, इसीलिए उसको लोब फिन भी कहा गया। एंड दीज बिलोंग टू सब क्लास सार्कोप्टेरिगी, काफी कम स्पीसीज है। एक्टिनोप्टेरिगी में 27,000 स्पीसीज था, इसमें देयर आर ओनली फ्यू, तो दिस ब्रांच इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। और इस ब्रांच में 3 लिनिएज हुआ, उसमें जो थर्ड लिनिएज है दैट बिकम्स हाईली डाइवर्सिफाइड एंड वेरी मच सक्सेसफुल। तो इस ब्रांच में उसी 2 लिनिएज को हम पढ़ते हैं लोब फिन में, और थर्ड लिनिएज जो है उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे टेट्रापोडा में। तो लोब फिन में जो 2 लिनिएज है दैट इज द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। Like the ray fin fishes, the other major lineage of Ostisthians, the lobe fins यानी Sarcopterygi also originated during the Silurian period. Silurian period में ही आया आपका क्या? फिन फिशेस और लोब फिन। लोब फिन भी आया, कॉन्ड्रिस्थिस भी साइलूरियन में ही आया ना? हाँ यस सर। तो साइलूरियन तो बहुत लंबा पीरियड है, उसमें लेट अर्ली मिडिल उसी डिफरेंट टाइम पॉइंट में आया। ओके, सो द लाइक द रे फिन फिशेस, द मेजर लिनिएज ऑफ द ऑस्ट्रिशियंस, द की डिराइव्ड कैरेक्टर ऑफ लोब फिन्स इज द प्रेजेंस ऑफ रॉड शेप्ड, हम बता रहे हैं रॉड शेप्ड बोन्स। वहां पर क्या था, फिन शेप था, यहाँ पर रॉड शेप्ड है।
1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना, मैं आ रहा हूँ, तो 1 मिनट। हाँ, ओके। Rod shaped bones surrounded by a thick layer of muscles in their pectoral and pelvic fins. फिन में भी उसका मसल है। ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड मेनी लोब फिन्स, डेवोनियन आया कब? साइलुरियन के बाद, ठीक है। मेनी लोब फिन फिशेस वर लिविंग इन द ब्रैकिस वाटर। जो ब्रैकिस वाटर मतलब उसको क्या बोलते हैं, जहां पर पानी कम गहरा होता है, ओके, छिछला पानी जिसको बोलते हैं, वहां डेवोनियन पीरियड में दे वर एबंडेंट। हम क्यों बोल रहे, डेवोनियन पीरियड में ये जो लीनियज था, जब विकास हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था लोब फिन फिशेज में, डेवोनियन पीरियड में दे वर एबंडेंट, such as in coastal wetlands. There they may have used their lobe fins to swim and walk underwater across the substrate, as do some living lobe fins. So उस समय काफी abundant है। Some Devonian lobe fins were gigantic predators. It is not uncommon to find spike-shaped fossils of the Devonian lobe fin teeth as big as your thumb. Okay, so this is an ancient lobe fin और इसका फॉसिल काफी ज्यादा प्रिजर्व्ड है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर, आ रही है। यस सर, बट थोड़ा कट्टा कट्टा सा आ रहा है। ओके, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ लगता है आज। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, यू कैन उसको फिर से देख लेना। तो इसका जो है फॉसिल रिकॉर्ड जो है काफी प्रिजर्व्ड रखा गया है, था, एकदम सही सलामत मिला, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन कर लिया गया। तो दिस इज द रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म of an ancient lobe fin fish 420 million years ago. The fossil of this species was nearly complete, allowing for an accurate reconstruction. तो आप देख सकते हैं इसमें बोनी स्पिक्यूल टाइप का है, ठीक है, डॉर्सल स्पाइन में, यहां पर लाइक ए थंब, वही कह रहा है। It is some Devonian lobe fins were gigantic predators, बड़े बड़े शिकारी थे। It is not uncommon to find spike जैसा shaped fossils of Devonian lobe fin teeth as big as your thumb, spike shaped, इस पर प्रेजेंट होता था लाइक ए थंब, बट दे आर एक्सटिंक्ट नाउ। By the end of Devonian period, lobe fin diversity was dwindling. और डेवोनियन पीरियड के खत्म होते होते तक, यानी साइलोरियन पीरियड में ही आया, और डेवोनियन पीरियड के एंड होते होते तक लोब फिन फिशेस का जो पॉपुलेशन है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, दैट वेयर रिड्यूसिंग, dwindling, and today only 3 lineages survive. Many lineages disappeared and only 3 lineages survive today. One lineage is called as coelacanths और actinistia. ये हो गया आपका क्रोसोप्टेरिडी। One lineage was thought to have become 75 million years ago. हाँ, interesting.
पहले जूलॉजिस्ट को ये नहीं मिला, इसके फॉसिल्स ही मिलते थे, ठीक है, एक्टिनिस्टिया का। So they thought that this branch, this lineage is extinct. But in 1938, a fisherman caught a living coelacanth off the east coast of South Africa. ये मिला, इसको ये इसका नाम लातिमेरिया है, स्पीसीज लातिमेरिया। और 90 तक आते आते all subsequent discoveries were near the Comoros Island of the Western Indian Ocean. हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में कोमोरोस आइलैंड है, वहां पर ये 1990 में मिला। फिर since 1999 coelacanths have also been found at various places along the eastern coast of Africa and in eastern Indian Ocean नियर इंडोनेशिया। इंडियन ओशियन का पूर्वी भाग में, क्या इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जो ओरिएंटल रीजन है यहाँ पर मिलता है। एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर, कीनिया, तंजानिया, इधर सब जो है, सोमालिया, ईस्टर्न कोस्ट पर। द इंडोनेशियन पॉपुलेशन में रिप्रेजेंट ए सेकेंड स्पीसीज। तो इसके समझ लो 2 स्पीसीज है मिले इनको सिर्फ। पहले तो एक्सटिंक्ट था, समझ आया, एक्सटिंक्ट है, बाद में मिल गया। तो एक स्पीसीज जो इनको मिला पहले, कहां पर, 1938 में साउथ अफ्रीका में एक स्पीसीज, और इंडोनेशियन पॉपुलेशन द सेकेंड स्पीसीज। सो देयर आर ओनली 2 स्पीसीज व्हिच आर लिविंग टुडे, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गया ड्यूरिंग द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ डेवोनियन पीरियड, एक्सटिंक्ट हो गए। अब आते हैं दूसरा लीनिएज। तो ये कौन था, ये था आपका, क्या था, एक्टिनोप्टेरिगी, सॉरी एक्टिनोप्टेरिगी बोल रहे, क्रॉसोप्टेरिगी। ओके, इसको ऑस्टियोलेप्सिस भी बोलते हैं, एक्सटिंक्ट हो गया ऑस्टियोलेप्सिस। अब सेकेंड लिनिएज पर आते हैं, लिविंग लोफिन और द लंगफिश विच इज डिप्नोई इज रिप्रेजेंटेड टुडे बाय 6 स्पीसीज। तो 2 स्पीसीज इसमें हो गया, 6 स्पीसीज इसमें हो गया। तो पूरे आपके सार्कोप्टेरिगी में 8 स्पीसीज हो गए बस, ठीक है। ऑस्टिस्थिस का 2 सब क्लास, एक्टिनोप्टेरिगी, सार्कोप्टेरिगी। एक्टिनोप्टेरिगी में 27,000, सार्कोप्टेरिगी में 8। तो आप कल्पना कर सकते हैं कहां 27,000 स्पीसीज एक्टिनोप्टेरिगी का और 8 स्पीसीज सार्कोप्टेरिगी का। और 8 स्पीसीज सार्कोप्टेरिगी में 2 स्पीसीज क्रॉसोप्टेरिगी का, जो फर्स्ट वाला लिनिएज बताए ये, एंड द सेकेंड लिनिएज विच इज आपका ऑर्डर डिप्नोई which is represented today by 6 species in 3 genera, all of which are found in the southern hemisphere, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी के विषुवत रेखा के दक्षिण में ही ये मिलते हैं। all of which are, सारे के सारे, यानी कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। अब देखिए लंग फिश, एक इंटरेस्टिंग बात है। पहले लंग फिश जो डिप्नोई है, पहले आया ये मरीन, समुद्र में, ओशियन में। बाद में ये पहले जो था लंग फिश, एक्वेटिक जो लंग फिश थे, मरीन लाइफ था, बहुत सारे ब्रांचेस थे, बहुत सारा स्पीसीज था। फिर some species acquired the fresh water, but the marine water species became extinct. So today we found only the freshwater species. So these 6 are the freshwater species. So the lungfishes arose in the ocean, but today are found only in the freshwater.
जनरली इन स्टैग्नेंट पॉन्ड्स एंड स्वैम्स, दलदल में या जहां पर ठहरा हुआ पानी है, तालाब में। कहाँ के तालाब और दलदल में? साउदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में कुछ देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ओके, साउथ अफ्रीका है, वहां के स्टैग्नेंट पॉन्ड्स एंड स्वैम्स में। दे सरफेस टू गल्प एयर इनटू लंग्स कनेक्टेड टू देयर फेरिंग्स। तो जब दलदल में ये रह रहा है तो दलदल से बाहर निकल के हवा में आता है और गल्प एयर, जैसे कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो गल्प करते हो, वैसे ही गल्प एयर इनटू द लंग्स कनेक्टेड टू देयर फेरिंग्स। लंग फिशेस आल्सो हैव गिल्स। इनके पास दोनों चीज है, लंग भी है एंड गिल भी है। Which are the main organ for the gas exchange in the Australian lungfish? Australian lungfish में gills are the main organ for the gas exchange, लेकिन लंग से भी होता है। When ponds shrink during the dry season, some lungfish can burrow into the mud and estivate, wait in a state of torpor. जब पानी और भी कम हो गया, सूख गया, फटने लगी वहां पर मिट्टी, तो लंग फिश जो है और गहराई में बिल बना के नीचे चला जाता है, इनटू द मड एंड एस्टिवेट, मतलब वहां इन ए डोरमेंट पोजीशन, दे लाई फॉर सेवरल मंथ्स, वेट इन ए स्टेट ऑफ टोरपोर, इंतजार करता है, इन ए स्टेट ऑफ टोरपोर। टोरपोर मतलब इनएक्टिव मेंटल स्टेट और बॉडी स्टेट, स्टेट में। ओके, सो ये दोनों हो गया। अब आपका क्रॉसोप्टेरिगी एंड डिप्लोई, आपका एक सार्कोप्टेरिगी का। अब जो है थर्ड लीनिएज जो गया, जिस पर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं अभी तक बार बार, जो कि we are terrestrial ostisthians. Humans are terrestrial ostisthians. The third lineage of lobe fins that survives today is far more diverse than किससे? coelacanth से, यानी coelacanth क्या था आपका? क्रॉसोप्टेरिगी, और द लंग फिशेस यानी डिप्लोई, इन दोनों से भी काफी ज्यादा डाइवर्स ड्यूरिंग द मिड डेवोनियन पीरियड के मिड में। ठीक है, लोब फिन फिशेस के ये दोनों लीनियज जो है गायब हो गए, ये दोनों लीनियज तो अभी लिविंग है। अदर लीनियजेस जो थे वो डेवोनियन पीरियड के लास्ट तक एक्सटिंक्ट हो गए। दीज टू आर स्टिल लिविंग, बट अदर लीनियजेस एक्सटिंक्ट एट द एंड ऑफ डेवोनियन। But during the mid of Devonian, these organisms adapted to life on the land and gave rise to vertebrates with limbs and feet called tetrapods, a lineage that includes humans. The tetrapod clade is the topic of the next section. ठीक है, तो थर्ड लीनिएज जो है बाद में कब इसका विकास शुरू हुआ? मिड डेवोनियन में, यानी जब एक्टिनोप्टेरिगी तो काफी सक्सेसफुल रहा, सार्कोप्टेरिगी जो है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, अभी तो सिर्फ 8 स्पीसीज है। दे वर अबैंडन्ड ड्यूरिंग साइलोरियन पीरियड, बट they started dwindling around Devonian period, and during that time only different lineage, third lineage also arose, which gave rise to tetrapoda. ये क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है कहीं पर? Anybody having any problem? Anything to ask? क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम आपको फिर इन्फॉर्म करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम लेंगे। अभी मुझे एमएससी का क्लास लेना है, उसके बाद हम आपका, उसके क्लास के बाद फिर आपका क्लास लेंगे, तो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी ये
एंड हो जाएगा, टाइम ओवर होने वाला है। नेक्स्ट क्लास हम लोग टेट्रापोडा पढ़ेंगे। सर Okay, एस्टिवेशन sir. को थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना, कौन सा? एस्टिवेशन प्रोसेस जो है। एस्टिवेट, ठीक है। एस्टिवेट का Yes, लिटरल sir. मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एस्टिवेट? ऑफ एन इंसेक्ट और ए फिश और एम्फीबियन, इस तीनों के टर्म में यूज करते हैं। Spend a hot or dry period in a prolonged state of torpor or dormancy. During this period, their metabolic activity becomes